हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, बट उसके भी पहले सोर्सेज क्या होते हैं कि हम किस तरीके से वैकेंट पोजीशंस के लिए एक्सटर्नली कैंडिडेट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अपने ऑफिस के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, अपने इंस्टीट्यूट के बाहर आप एक पोस्टर लगा दो जिसमें आप वैकेंसी की डिटेल्स लिख दो एंड देन पीपल कैन लुक एट द वैकेंसी एंड देन दे विल बी स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द वैकेंट पोजीशन। सो जनरली जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड काम होता है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर वगैरह, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हम, या एडमिन वगैरह, या थोड़े से रेप्यूटेड प्रोफेशंस हो गए, एडमिन, रिसेप्शनिस्ट, इन कैंडिडेट्स के लिए भी हम बाहर ऑफिस के एक पोस्टर लगा के वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट ऐसे दिखा सकते हैं एंड देन पीपल विल लुक एट इट और दे कैन रेफर समवन और दे कैन रेफर देमसेल्व्स। सो दिस इज अ सोर्स ऑफ फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट, also called as direct recruitment. The next source is casual callers. Sometimes people just casually call in the organization to know whether there is some vacancy or not. Let's suppose कि someone has just done MBA in finance from such institution, किसी college से, and then he or she is applying in different companies by calling कि now I have done MBA in finance, if there is any vacancy related to finance department, I would like to apply in your organization. तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन के ही थ्रू हो सकता है कि उन्होंने ईमेल कैजुअली भेजा है अपना अप्लाई करने के लिए, या फिर उन्होंने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपना एप्लीकेशन सेंड करा है, रेज्यूम सेंड करा है। ठीक है, सो रेज्यूमे भेजने का, सीवी भेजने के मल्टीपल वेज होते हैं, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप भी आजकल काफ़ी चल रहा है। सो दिस इज ऑल ऑफ दीज आर काउंटेड एज कैजुअल कॉलर्स, लाइक they are not aware whether there is some vacancy or not. They have casually called up in such organizations to apply for themselves. Next is advertisement. अब एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में हो सकती है, मैगजीन्स में हो सकती है। एडवर्टीजमेंट का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आ जाता है। इतने सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो एज सून एज दे विल बी लुकिंग एट द वेकेंट पोजीशन, दे विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब. The problem is not in the multiple responses that we are getting so many responses. It is actually a good thing, but the negative thing of this advertisement is that most of the unsuitable candidates which are not suited for the vacant position apply for the job, because as soon as they look at the advertisement they get ignited ki let's apply, we will see whether we get selected or not, that is secondary, but the primary thing is that we should apply for the job. So that is the drawback of advertisement. And then so one more thing that I just saw over here, for senior positions advertisement is a good source. Like let's suppose you want to hire a chief marketing officer, or you would like to hire a president. In that case advertisement will be the best source for you for higher positions. Employment exchange. Now state governments and central governments in India have set up some offices, what are called as employment exchanges. In these offices, basically those organizations which have vacant positions give details to these offices about the vacant positions, and the people who have just graduated or those who have some qualification and experience, they can apply over here. So there is a match between the organization and the candidates by these exchanges, and then they will refer the candidates and so on. The only drawback is that sometimes data is outdated. Now if someone has applied, let's suppose 2 or 3 weeks ago, and right now he settled somewhere in the organization, and the employment exchange is referring that person who is already applying, but employment exchange is unaware about the same, then they will refer, and then it will waste the time of both employment exchange as well as the organization who has a vacant position. So this is the only drawback. Next one, a preferable one is placement agencies and management consultants. ये जो बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, इन लोगों का काम होता है कि ये कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देने के बाद इंटरव्यू की प्रॉपर तरीके से डिफरेंट एरियाज में नॉलेज इन्फॉर्म मतलब बताते हैं उन लोगों को कि जब इंटरव्यू दोगे तो हाउ यू हैव टू स्पीक, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, एंड देन कंपनीज इनके कॉन्टैक्ट में रहती हैं। मेनली ये भी सीनियर पोजीशंस के लिए रिकमेंडेड रहता है, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट होगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गई, ऐसे लेवल के लिए दीज एजेंसीज आर रेफर्ड. अब इसमें बेनिफिट ये रहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस इनके कॉन्टैक्ट में होती हैं जिनको कैंडिडेट्स की नीड है, और कैंडिडेट्स भी इनके कॉन्टैक्ट में होता है, तो एक तरीके से ये इंटरमीडिएरी हैं जो एक मैच करवा देते हैं कैंडिडेट्स का विद द ऑर्गेनाइजेशन. अब ये प्राइवेट काम है और वो गवर्नमेंट काम है, ठीक है, ये गवर्नमेंट चला रही है तो उसमें फीस वगैरह नहीं रहती है, बट ये प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज जो प्राइवेट काम कर रहे हैं तो ये एम्प्लॉई का कुछ कमीशन चार्ज करेंगे जब उसकी जॉब लग जाएगी आफ्टर दैट. और स्टार्टिंग में भी उसकी ग्रूमिंग करने के लिए, उसको समझाने के लिए हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, दे माइट चार्ज सम फीस फॉर दैट थिंग एज वेल. इट डिपेंड्स अपॉन द मॉडल ऑफ द बिजनेस कि वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं अपनी एजेंसी को, वो किस तरीके से चला रहे हैं. तो ये प्रोफेशनल रिक्रूटर्स होते हैं, ठीक है. सो ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स, यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है
कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो टॉप लेवल मैनेजर्स और इवन मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस इनको कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज में जाओ, इंटरव्यू कंडक्ट करो डिफरेंट स्टूडेंट्स का, उनमें से जो आपको सूटेबल लगे आप सिलेक्ट करो। अब कॉलेजेस को भी मतलब इन इंस्टीट्यूट्स को ऑर्गेनाइजेशंस के टच में रहना पड़ता है, बिकॉज भाई जो ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज में आके इंटरव्यू एंड ऑल कंडक्ट नहीं करेगी, क्या आप ऐसे कॉलेज में अप्लाई करोगे एडमिशन के लिए? आप जनरली ऐसे कॉलेज में जाओगे जहाँ पर कंपनीज आती हैं, वहाँ से इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप के लिए ऑफर करती हैं। इन दैट सेंस ओनली कॉलेज की भी रेपुटेशन मेंटेन रहेगी और एक रीजनेबल वेज रेट पे कैंडिडेट्स कॉलेज से पास आउट होकर कंपनी में जाके जॉब कर सकते हैं। सो दोनों का इसमें फ़ायदा है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कॉलेज के लिए है कि वो रिलेशंस मेंटेन करके रखें कंपनीज के साथ, ताकि वो आके कैंडिडेट्स को रिसीव करें फॉर ऑफ हाई कैलिबर। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, आपके जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, अब उनमें से अगर कोई आपका रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है जिसको आप रिकमेंड करना चाहते हो, रेफर करना चाहते हो फॉर द वेकेंट पोजीशन, इट कुड बी अ सोर्स। अब काफ़ी केसेस में स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमारा इंटरनल बंदा किसी को बाहर के लिए रेफर कर रहा है तो इट शुड बी अंडर इंटरनल सोर्स। बट देन एनसीईआरटी ऑथर्स जिन्होंने बेटा ये पूरी बुक पब्लिश करी है, उनका ये बिलीफ है कि बंदा तो बाहर से आ रहा है ना, यू आर रेफरिंग समवन, यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने फ्रेंड को रेफर कर रहे हो वेकेंट पोजीशन के लिए। फाइनेंस मैनेजर की जगह खाली है, आपके फ्रेंड ने आईआईएम से एमबीए करी फाइनेंस में, आप उसको रेफर कर रहे हो कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आके इंटरव्यू दे दो। सो इन दैट सेंस आपका फ्रेंड बाहर से आ रहा है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल में सिर्फ दो पढ़े थे हमने, एक ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन, बाकी सारे हम अभी एक्सटर्नल ही पढ़ रहे हैं। रिकमेंडेशन रेफरेंस भी एक एक्सटर्नल सोर्स है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, अब लेट्स सपोज कि एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ टेक ओवर करती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जहाँ घर स्कूल हॉस्पिटल बनने होते हैं तो ये बना के देते हैं। अब एक फर्म में रियल एस्टेट की 4 लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और हर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में सपोज करो 100 150 लेबर फोर्स है, और जो भी साइट उनको ऑर्डर में आती है कि ये कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो अपनी लेबर को कॉल करके वहाँ बुला देते हैं और काम शुरू करवा देते हैं। अब लेट्स सपोज कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मैं अपना काम छोड़ रहा हूँ, मुझे कहीं बाहर जा रहा है अब्रॉड में, मुझे या कोई और प्रोफेशन चेंज करना है, और कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और आपकी जो कंपनी है वो अब चाह रही है कि जो आपका टॉप मैनेजर है कि किसी और कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ अब साइट दी जाए, तो वो अपनी लेबर को प्रेफर करेगा ओवर दी लेबर जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रही है। तो जो लेबर वहाँ काम कर रही है वो कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकती है कि हम 50-100 लोग कहाँ जाए, हमारा काम एकदम से आप छीन रहे हो, सो वेयर विल वी ऑल गो, और वो उस पर्सन के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं। मेन तो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट मतलब फाइल करा जाता है सूट लॉ। सो अल्टीमेटली ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर एक पर्सन जॉब छोड़ता है तो उसके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जो लेबर कनेक्टेड है, उनकी भी जॉब रिस्क पे आ जाती है, तो वो केस कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए, दैट्स इट। एंड देन एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, आजकल इतना नहीं होता, एक टाइम पर न्यूज़ चैनल्स में होता था, एक साइड पे न्यूज़ चल रही है, लेफ्ट साइड में किसी कॉलेज में प्रिंसिपल की जगह खाली है, किसी टीचर की जगह खाली है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर की जगह खाली है, तो वो साइड में एडवर्टीजमेंट चलता रहता था। एडवर्टीजमेंट मतलब वो एक तरीके से पिक्चर दिखा देंगे कि सिचुएशन वेकेंट, और नीचे लिख देंगे ये स्कूल है, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, इस एज ग्रुप में रिक्वायर्ड है, ये एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, तो वो टेलीविजन हो गया। वेब पब्लिशिंग, काफ़ी वेबसाइट्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, naukri.com, jobhai.com, internshala.com, जहाँ पर कंपनीज अपनी वेकेंट पोजीशन के बारे में डिटेल्स फुलफिल करती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अपना रिज्यूमे CV अपलोड करते हैं, कंपनीज उनको गो थ्रू करें एंड देन दे कैन कॉन्टैक्ट देम अगर उनका जो मैच हो जाता है एक्सपीरियंस विद द वेकेंट पोजीशन, ठीक है जी। सो वेब पब्लिशिंग के मल्टीपल सोर्सेज हैं, ये एक इंटरमीडिएट वेबसाइट्स हैं, बस इसमें वो अपना कमीशन चार्ज करेंगे, वो उनका रेवेन्यू का सोर्स है। और कंपनीज काफ़ी केसेस में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे नोटिस डाल देती है कि ये पोजीशन खाली है, ये वैकेंसी है, तो कहीं पर भी इंटरनेट पे आपकी वैकेंसी जा रही है या आप अप्लाई कर रहे हो तो इट इज़ वेब पब्लिशिंग। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये रिक्रूटमेंट हो रही है, सिलेक्शन नहीं हो रही। ये कैंडिडेट्स जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद इन लोगों का इंटरव्यू होना है, टेस्ट वगैरह भी होने बाकी हैं। ये तो आप कैंडिडेट्स को किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करवाने के लिए स्टिमुलेट कर सकते हो वो देख रहे हो कि आप क्या न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहते हो, टीवी में ऐड देना चाहते हो, या फिर आप कैंपस में जाके रिक्रूटमेंट करोगे, या फिर आप फैक्ट्री के गेट के बाहर लगाओगे पोस्टर, या किसी एजेंसी के पास जाओगे अगर टॉप पोजीशन चाहिए फिल करने के लिए, तो प्लेसमेंट एजेंसी या फिर एडवर्टीजमेंट हो सकता है न्यूज़पेपर में। सो यू विल हैव टू फिगर आउट हाउ यू विल बी स्टिमुलेटिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द वेकेंट पोजीशन। फ़ायदे क्या क्या हैं अगर आप बाहर से पोजीशन फिल करते हो? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, नया कैंडिडेट जब कंपनी में सिलेक्ट हो जाएगा तो वो ये दिखाना चाहेगा कि भाई मैं इतना भी नया नहीं हूँ, वो दिखाना चाहेगा कि मैं आप एग्जिस्टिंग लोगों से ही बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, और एग्जिस्टिंग लोग ये शो करना चाहेंगे कि हम लॉयल हैं, पुराने हैं, तो वो कंपटीशन से कंपनी का बेनिफिट होगा। क्वालिफाइड पर्सोनेल,
आप 50-100 लोग जिन लोगों ने अप्लाई करा उसमें से एक को सिलेक्ट करते हो, तो क्या वो क्वालिफाइड नहीं होगा? चॉइस आपको इतनी मिल जाएगी, वाइड चॉइस, इतने लोगों ने अप्लाई करा, फ्रेश टैलेंट, इनोवेशन, कुछ नए आइडियाज लेकर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव रहेगा, नए सजेशंस लेकर आएगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। दिक्कत कहाँ कहाँ पर होगी? टाइम लग जाएगा, लोग अप्लाई करेंगे, फिर जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको आप मना करोगे, जो सूटेबल होंगे उनके टेस्ट लोगे, फिर इंटरव्यू लोगे, फिर मेडिकली फिट है या नहीं चेक करोगे, जो फिट होंगे उनका रेफरेंस वगैरह चेक करोगे, फिर डिसीजन लोगे। तो लंबा चौड़ा काम है, कॉस्टली प्रोसेस। बेटा एडवर्टीजमेंट फ्री में नहीं जाएगा, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे टीवी में हो, चाहे कहीं भी हो। कोई एजेंसी अगर आपको कैंडिडेट प्रोवाइड कर रही है जिनको उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब बढ़िया करके दिए, जब अगर आप उसको सिलेक्ट कर लोगे तो वो अपना कमीशन चार्ज करेंगे। डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, अगर आप किसी अपर पोजीशन को किसी आउटसाइडर से फिल कर लेते हो तो आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं जिनको उम्मीद थी कि शायद हमारा प्रमोशन हो जाएगा, उनको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन होगा कि यार हम इतने टाइम से काम कर रहे थे, हमारे प्रमोशन की जगह इसने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने एक्सटर्नल सोर्स से किसी को फिल कर दिया। अब ये हमें ऑर्डर देगा, हमें इतना टाइम हो गया कंपनी में काम करते हुए, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, किसी का भी होता बट हम में से किसी का हो जाता तो एक सेटिस्फेक्शन रहती, बट हमारे ऊपर किसी और को ले आए तो वो अनएक्सेप्टेबल है। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करना है वो ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा, अगर वो किसी अपर पोजीशन को एक्सटर्नल से फिल कर लेते हैं रेदर देन प्रमोशन ऑफ द existing employees. So these are the benefits and demerits of external source of recruitment. So we have already discussed internal external recruitment sources. In next lecture we will be talking about the procedure through which selection is done. So I believe it is clear to you. कोई भी डाउट डिफिकल्टी है अभी तक जितना हमने करा है कमेंट सेक्शन या इंस्टा हैंडल पे पूछ सकते हो। दिस इज इट फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।